So good morning all once again. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. What is refrigeration? What is air conditioning that we have discussed in the yesterday's class? Clear? Yes, sir. What is the basic function? What is the basic working principle of both these devices? Here we discussed about that. Is it clear? Yes, sir. Then we talked about the difference, similarity and difference between the refrigerator and air conditioner. What is the similarity between both of them? So what is that? What is the similarity? Refrigerator, that is a fridge. Do you know fridge? Yes, sir. So refrigerator is a fridge basically. So what is difference between refrigerator and air conditioner, and what is the similarity that we have discussed in the previous class? So what is the similarity? Both of these are used to cool down the available space or desired space. Yes, sir. Clear? Now what is the difference? Other than performing this task, the cooling task, air conditioner can also perform some other tasks like controlling the humidity, purification of the air, and circulation of the air. Is it clear? Yes, sir. So refrigerator, as you can see here, can only perform this task or is only responsible for performing this task, that is to maintain the temperature, although it can go below 0 degrees Celsius. While the air conditioner, of course, it maintains the temperature, but other than that, it also performs these tasks. So this is the difference between air conditioner and refrigerator. Then we discussed about the various definitions of refrigeration. So these are the 4 important types of ways how we can define refrigeration that we've discussed. Then we talked about the important parameters for that can be used to compare or evaluate the performance of any refrigerator system. So one of them is the unit of refrigeration, that is ton refrigeration. जो रेफ्रिजरेटर का जो काम है यानी कि कूलिंग करना, उसको नापने का पैमाना, द पैरामीटर, दैट इज टन रेफ्रिजरेशन, इट इज द यूनिट। ठीक है ना? तो हम जब बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बताता है हमें कि ये भाई साहब ये एसी जो है ये 2 टन का है, 1.5 टन का है, ठीक है ना? हालांकि वो टन अधूरा बोलते हैं, फुल पॉइंट इज टन रेफ्रिजरेशन। Then the next point was coefficient of performance. Now this is something associated or comparable with the efficiency of other devices. Clear? So this tells about the efficiency of a refrigerator. Is it clear? It is the ratio of output upon input. It is the ratio of output and input. How much refrigeration effect or cooling effect the device will produce divided by how much work input or energy will be required by the system. Now today we have to do a very important thing. We need to understand the refrigeration cycles. So there are many refrigeration cycles, and the most common or most important are these 3: the air refrigeration cycle, vapor compression refrigeration cycle, and vapor absorption refrigeration cycle. Now what is the applications of all these 3? Let me tell you. The air refrigeration cycle, the first cycle, this is suitable for aircrafts, as it has been mentioned here. Clear? Air refrigeration cycle is used for aircrafts. Why for aircrafts? Because in the case of aircrafts, we have naturally freely available atmospheric air at very high velocity. So this comes as an advantage to us. So we use that naturally available high velocity atmospheric air as refrigerant or cooling medium, working medium for the refrigeration cycle. वो कैसे होता है, that will understand जब हम पढ़ेंगे इसको आगे भी। ठीक है? तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? वेयर विल यूज इट? जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे पास अवेलेबल हो हाई वेलोसिटी पे। ठीक है? This is the most simple type of arrangement.
but the coefficient of performance is very low. That means the cooling effect produced is very low compared to the overall size of the device. Second is your vapor compression refrigeration cycle. Now this vapor compression refrigeration cycle is used in our domestic purpose. The fridge what we see in our kitchen, that is using this cycle, vapor compression refrigeration cycle. Now this vapor compression refrigeration cycle what we use in the fridge available at our homes, it has some advantage, like it is having better coefficient of performance, or you can say better efficiency compared to the previous one. Clear? But there are some disadvantages also, like one of the device used in this cycle is compressor. Clear? तो compressor भी इसमें यूज किया जाता है सेकंड वाली में. तो compressor जो है एक ऐसा डिवाइस है, basically it consumes large amount of energy. It requires high amount of energy. First thing. Second thing, it produces heat energy. It produces noise. It produces vibration. So these are some of the disadvantages of vapor compression refrigeration cycle. Also the efficiency is better than air refrigeration, but not the best, and therefore for small applications we can use this cycle, vapor compression refrigeration cycle, for small applications, for small scale refrigeration process. But this cannot be used for large scale refrigeration production, like जो फैक्ट्री से जहां से बर्फ की सिल्लियां बन के आती है, जानते हैं ना आप लोग? यस सर. वहां पे अगर इस साइकिल को यूज करेंगे हम लोग, जो सेकंड साइकिल है, अगर इसको यूज करना चाहेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और इकोनॉमिक नहीं रहेगा प्रोसेस. हम हमारे घरों में बर्फ जमाते हैं, वो कितनी महंगी पड़ती है हमें. कोई पड़ोसी हमसे मांग ले थोड़ी सी बर्फ, तो एक दिन दे देते हैं, 2 दिन दे देते हैं, तीसरे दिन मना कर देते हैं, बिकॉज इट हैज सम कॉस्ट दैट वी रियलाइज आफ्टर 2-3 days, isn't it? लेकिन जो बर्फ मार्केट से लेके आते हैं हम लोग, कितनी सस्ती मिलती है हमें. 10 रुपए में 20 रुपए में पूरा बहुत बड़ा टुकड़ा ले आते हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि वो लोग वहां पे वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज नहीं की जाती, वहां पे यूज की जाती है जो थर्ड साइकिल है हमारी, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल. दिस साइकिल इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. देखिए अब क्या है, जो बेसिक तरीका है वो आप समझ लीजिए पहले. ये जो 3 साइकिल्स हैं, एयर रेफ्रिजरेशन हो, वेपर कंप्रेशन हो या वेपर एब्जॉर्प्शन हो, ये बाद की बात है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लेआउट ऑफ दीज 3, I will let you know the basic principle or basic technique through which we can actually produce this cooling effect. ठीक है, मैंने आपको क्लास में करके दिखाया था एक एक्टिविटी कि आप अपने हाथ को इस तरह से रखिए. Can you see my hand? इसको Yes, अपने माउथ के पास लेके जाइए ऐसे आप. ठीक है, और जो माउथ ओपनिंग है दो बार करना आपको. एक बार तो पूरा मुंह खोलना है और फिर हवा मारनी है, और एक बार माउथ ओपनिंग कम करनी है. एक बार आपको माउथ ओपनिंग कम रखनी है, जैसे सीटी बजाते हैं हम लोग, सीटी नहीं बजानी, बस हमें हवा मारनी है उसी हाथ पे, उसी तरह से माउथ ओपनिंग स्मॉल रख के. कमर डिफरेंस फील हुआ आपको? यस सर. क्या फील हुआ? उसका डिस्टेंस कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा उससे. डिस्टेंस आपको सेम रखना है, ठीक है ना? डिस्टेंस आपको सेम रखना है, हाथ उसी जगह रखना है, मुंह उसी जगह रखना है. एक बार आपको हवा थ्रो करनी है पूरा मुंह खोल के, और एक बार माउथ ओपनिंग. हॉट एयर एंड कोल्ड एयर. आपको जो डिफरेंस फील होगा वो होगा, एक बार आपको गर्म हवा आएगी, एक बार आपको ठंडी महसूस होगी हवा. दोबारा करके देखो आप फील हो रहा है कि नहीं हो रहा. यस सर. तो why this happened? देखिए सेम पॉइंट से हवा आ रही है ना, सेम हमारे लंग्स से एयर आ रही है दोनों ही केस में. खाली माउथ ओपनिंग कम ज्यादा करने से ये टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस आया ना टेम्परेचर में.
प्रेशर क्यों आया तो टेम्परेचर में वेरी डिक्रीज? कर नहीं आना चाहिए था ना ये प्रेशर सर ये तो मैजिक हो तो गया, जब एकदम हम लोग मैजिक। का माउथ ज्यादा ओपन था तो द रीजन इज कंप्रेशन। जब हम माउथ ओपनिंग स्मॉल रखते हैं तो जो गैसेस हम प्रेशर लगा रहे हैं, लंग्स के थ्रू हम प्रेशर लगा रहे हैं गैस पे, तो वो कंप्रेस होकर बाहर निकलती है। ठीक है ना? तो ये कंप्रेशन जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ना, हम कह सकते हैं एक टूल है। ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम? So these are those 4 important steps. Yes, First sir. step is compression, second step is heat rejection, third step is expansion, and fourth step is heat absorption. हीट है ठीक है, जैसे हमारे इंजन में क्या होता था? Suction. Yes, very good. Every engine works on a cycle. What is that cycle? It comprises of 4 processes: suction, Yes, sir. compression, Expansion, exhaust. and then exhaust. Exhaust. ठीक है, similarly any cooling system, any cooling device will undergo these four processes in a cyclic loop. एक बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में वो बता देता हूं मैं आपको। only a single device in the case of engine, that is the piston itself on its own can perform all these 4 steps in the engine, isn't it? But here in the case of refrigeration, this is not possible that a single device can perform all these tasks. Why? Because compression is a fast process. Clear? Compression we can do it very with spontaneously we can compress something. But heat rejection is a slow process. Is it clear? Heat rejection is not that fast process. It takes time, because from a hot medium to a cold medium, the heat will flow on its own. It is the natural property of the material, of the conditions which will govern the rate of heat transfer. Clear? It depends upon the temperature difference. It depends on the material. What will be the rate of heat transfer? कितनी जल्दी heat transfer होगा एक high temperature medium से एक low temperature medium पे, कितनी जल्दी heat transfer होगा, ये एक natural phenomena है, depend करता है 2-4 factors पे, लेकिन ये fast process नहीं बना सकते हमको ज्यादा compared to compression. Compression जितना fast हो सकता है कि हम जानते हैं इंजन में compression होता है, इंजन में भी होता है ना compression, second process है, second step है। तो आप जानते हैं 1 सेकंड में इंजन जो है वो हमने बताया था आपको 150 साइकिल्स कर सकता है। तो 1 सेकंड में 150 बार वो आप मान के चलिए कि कंप्रेशन कर सकता है। एक फास्ट प्रोसेस है, लेकिन हीट रिजेक्शन इज नॉट ए फास्ट प्रोसेस। ऐसे ही थर्ड स्टेप जो है हमारा एक्सपांशन, इट इज अगेन अ फास्ट प्रोसेस। while heat absorption again it is heat transfer, it depends upon heat transfer. ये भी क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। एक ही डिवाइस हम कैसे बनाए ऐसा, एक बार एक समय के लिए बहुत धीरे चले, है ना, यानी कि एक स्ट्रोक लेने में मान लीजिए वो 5 मिनट ले, और अगला स्ट्रोक ले ले वो 1 सेकंड में, फिर अगला स्ट्रोक 5 मिनट में ले, 10 मिनट में ले, और फिर 1 सेकंड में ले। पॉसिबल नहीं है ना बेटा ऐसा। Okay, moving forward. So as you can see, these 4 steps, 4 processes cannot be performed by a single device. Clear? So we will be requiring different devices. Compression will be performed by a different device. Heat rejection will be performed by a different device, another device. The expansion will be performed by some other device.
and heat absorption will be performed by some other device. So at least we will be having 4 such devices which combinedly will become a system, refrigeration system. Yes, sir. चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग टू अंडरस्टैंड कि ये कूलिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग. डू यू वांट टू नो? Yes, sir. जानना चाहते हैं हम लोग कैसे हम लोग कूलिंग कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूं मैं बिफोर स्टार्टिंग दी साइकिल्स. देखिए साइकिल्स तो जो बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमने ये साइकिल्स तैयार की हैं. एयर रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना, ये तो जो बेसिक आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद और उसमें मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके, बिकॉज नो कि हम इंसान जो है वो लालची होते हैं, हमें चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस, और अच्छी परफॉर्मेंस. Yes, sir. पहले बेसिक आइडिया आया, we got the basic idea first, then after modification day by day we got these different cycles. तो बेसिक आइडिया क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ पहले. ठीक है, सपोज दिस इज द रूम. Now let us suppose the temperature here, we assume it as 10. The temperature is 10. What 10? तो कुछ यूनिट होनी चाहिए उसकी, there should be some unit. तो हम खाली अभी एग्जांपल समझ रहे हैं, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं 10 वैल्यू ले ली हमने. ठीक है, टेम्परेचर कितना है इसमें? 10 है इस रूम में. रूम के बाहर क्या टेम्परेचर है ना? सपोज दिस इज योर रूम, इसमें टेम्परेचर है 10. ठीक है, बाहर आपकी एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग्स हैं रूम के बाहर, ठीक है ना, सराउंडिंग्स. यहाँ पे हम टेम्परेचर कितना मानेंगे? लगभग कितना है? 10 ही है लगभग. 10. हाँ. ठीक है, उसके आसपास ही होगा. इज इट क्लियर? Sir. ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसी रूम से कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग बाहर निकालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस है. ठीक है ना, ये क्या है आपका? कंप्रेसर है. क्या है ये? Compressor. ठीक है, दिस इज योर कंप्रेसर. ठीक है, तो हमने क्या किया, उसी रूम से कुछ एयर हमने निकाली, यहाँ पे अलग कर ली. अब यहाँ जो रूम निकली हमारे पास, कंप्रेसर के पास जो पहुंची एयर जो पहुंची, उसका टेम्परेचर कितना होगा? कितना होगा बेटा? 10. और हम मान के चल रहे हैं कि पहले यहाँ पे प्रेशर, इस जगह पे रूम में प्रेशर कितना है? वो भी मान लो 10 है. कितना है प्रेशर? भी कितना ले लिया अपन ने? 10 मान लिया. यहाँ बाहर कितना है प्रेशर सराउंडिंग्स में? 10. वो भी कितना है? 10 है, नॉर्मल प्रेशर है. 10. तो 10 प्रेशर और 10 टेम्परेचर की हमने कुछ गैस निकाल ली और यहाँ कंप्रेसर में लिया है. ठीक है, व्हाट वी डू नाउ, कंप्रेसर विल कंप्रेस these gases. And after compression, what will happen? The pressure will increase, and along with the pressure, you know, during compression the temperature also get increased. Is it clear? Increases. Yes, so sir. pressure and temperature both will get increased. So suppose हमने pressure कर दिया 20. ठीक है, कितना कर दिया? 20 कर दिया. टेम्परेचर भी हम मान के चल रहे हैं, वैसे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो तो इक्वेशन से निकालना पड़ता है कितने प्रेशर से कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं, खाली अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम टेम्परेचर भी क्या मानते हैं? टेम्परेचर कितना हो गया? 20 हो गया यहाँ. नाउ ये जो कंप्रेस्ड गैस है, इसको हम यहाँ लेके आए नीचे. इज इट विजिबल? Yes, sir. जो कंप्रेस्ड गैस है उसको लेके आए यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की शेप बना दी, एक लूप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, और इसमें ये आपका फ्लो करेगा, ये कैसे फ्लो करेंगे ट्यूब्स में, और इसको एक शेल बना दिया अपन ने, इसको कवर कर दिया पूरे को. तो इस शेल में आपके पास वो ट्यूब्स के अंदर वो गैसेस जो है ना हमारी, जो कंप्रेस्ड है, जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, वो फ्लो करेंगी. ठीक है, अब क्या है, ये जो इन ट्यूब्स के बाहर
इन ट्यूब्स के बाहर हमने ली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, वो हमने ली यहाँ पे अंदर एंटर होती हैं और यहाँ से मान लीजिए वो निकल जाती है बाहर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर है अंदर और बाहर टेम्परेचर कम है, ये मेटेलिक ट्यूब्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्ट हो जाएगी। जो अंदर ट्यूब्स हैं, यहाँ जो गैसेस हैं, ये अपनी जो हीट एनर्जी है वो दे देगी बाहर वाले गैसेस को, यानी कि एटमॉस्फेयर की गैसेस को। एटमॉस्फेयर, यस सर। ठीक है ना, और हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो -5 हो गया। कितना हो गया? -5 कम हो गया, 5 रिड्यूस हो गया, तो अब कितना बचा? 15। कितना बचा बेटा? 15। तो यहाँ पे जो गैसेस निकल रही हैं इस जगह पे, उसमें टेम्परेचर कितना बचा? 15, जबकि प्रेशर वही रहा 20। What we'll do now? Here we will use another device which is expander, which is just the inverse of compressor. जो काम कंप्रेसर ने किया उसका जस्ट अपोजिट वर्क ये करेगा आपका, and it will reduce the pressure again to 10. Clear? Yes sir. तो पहले जब प्रेशर हमने 10 बढ़ाया था तो टेम्परेचर भी 10 बढ़ गया था। हाँ। अब हम प्रेशर 10 कम कर देंगे तो टेम्परेचर भी 10 कम कर देंगे, होना चाहिए ना, 5 हो जाएगा टेम्परेचर। यस सर। टेम्परेचर भी 10 कम होना चाहिए ना वापस, लेकिन यहाँ पे पहले ही 5 लॉस हो चुका है टेम्परेचर में। हाँ। तो अब टेम्परेचर जो मिलेगा हमें यहाँ पे वो कितना मिलेगा बेटा? 5। कितना मिलेगा? 5। चलिए ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5, और प्रेशर क्या हो जाएगा? वापस नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि 10। अब ये जो गैसेस है हमारी जिनका टेम्परेचर कम हो चुका है, इनको हम लेके आएंगे यहाँ रूम के अंदर, और रूम में वापस से रूम में छोड़ेंगे नहीं इसको, बल्कि एक ट्यूब बना दी अपन ने यहाँ पे। ठीक है ना, फिर ट्यूब बना दी, और ये रूम की जो एयर है ये अपन चाह रहे हैं इसके आसपास से इससे इंटरेक्ट करे। ठीक है ना, तो ट्यूब्स के अंदर वो गैसेस फ्लो करेंगी। इन ट्यूब्स के अंदर टेम्परेचर कितना है बेटा? इनसाइड दीज ट्यूब्स द टेम्परेचर इज 5। रूम के अंदर 10 है। और व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम? 10। इट इज 10। तो हीट कैन फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये जो रूम की गैसेस हैं ये ठंडी होना शुरू होंगी। हाँ सर। और ट्यूब के अंदर जो गैसेस हैं हमारी ये आपकी गर्म होना शुरू होंगी। गर्म। इस तरह से ये आपके रूम की जो गैसेस हैं ये धीरे धीरे ठंडी होंगी। अभी यहाँ से आप इसको वापस कनेक्ट कर दो, जो गैसेस है ना ये वापस गर्म हो जाएंगी। ठीक है ना, ट्यूब के अंदर जो गैसेस हैं यहाँ रूम के अंदर ये वापस गर्म हो जाएंगी। मान लीजिए अब टेम्परेचर पहुंच जाएगा इनका 8, ये भी ट्यूब के अंदर भी 8 और रूम के अंदर भी 8। अब ये गैसेस जाएंगे वापस कंप्रेसर में, कंप्रेसर फिर कंप्रेस करेगा, फिर से प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा और आपका हीट रिजेक्ट हो जाएगी इस जगह पे। इसको बोलते हैं अपन कंडेंसर। यस सर। फिर आपका एक्सपांडर में क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? प्रेशर रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और इस जगह पे हमें मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा वापस। अब की बार हो सकता है 4 मिले, 3 मिले। फिर वो कैसे जाएंगी रूम के अंदर, तो रूम से तो कम ही है अभी टेम्परेचर इनका, तो फिर रूम से हीट लेंगी, है ना। इसको बोलते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं यहाँ पे एवेपोरेटर। पहला स्टेप क्या था? कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन यहाँ पे। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? इट इज हीट रिजेक्शन। हो गया हीट रिजेक्शन, यहाँ पे हुआ कंडेंसर में हीट रिजेक्शन। थर्ड, व्हाट इज थर्ड स्टेप? व्हाट इज थर्ड प्रोसेस? It is expansion. So here you can see this is the expander. Here, clear? And what is fourth step? What is the fourth step? Heat absorption. So here, through the evaporator, the system is absorbing heat from the room. It is absorbing heat from the room. So here the heat absorption will take place. Again, compression,
then heat rejection, then expansion, and then heat absorption, and so on. This is the basic cycle. ये बार बार चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और जहां तक इसकी कैपेसिटी है, जितना कंप्रेशन रेशियो मेंटेन कर सकता है ये कंप्रेसर, उसके हिसाब से फाइनली रूम का टेम्परेचर कम होते 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 एक कांस्टेंट वैल्यू पहुंच जाएगा. बोलो भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक लिमिट होती होगी ना इसकी, मिनिमम लिमिट कितना टेम्परेचर होगा इसका? बिल्कुल बेटा, लास्ट लिमिट बिल्कुल लिमिट होगी. और वो लिमिट किस पे डिपेंड करेगी? ऑन व्हाट फैक्टर्स इट विल डिपेंड? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंप्रेशन रेशियो. क्लियर? मिनिमम कितना हो सकता है? यस यस, रेशो कितना होगा? रेशो कितना हो सकता है मिनिमम? ये डिपेंड करता है ना कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर चाहिए. छोटी कैपेसिटी का होगा, छोटा कंप्रेसर होगा उसमें. बड़ी कैपेसिटी का है, ज्यादा बड़ा एसी ले रहे हो, 2 टन का एसी ले रहे हो, ज्यादा हैवी कंप्रेसर होगा उसमें, तभी वो ज्यादा बिजली खाता है. कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा. क्लियर है? तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे. पहला फैक्टर होगा कंप्रेशन रेशियो कितना है. दूसरा फैक्टर है कंडेंसर की परफॉर्मेंस कैसी है. तीसरा फैक्टर है एवापोरेटर की परफॉर्मेंस कैसी है, वहां मटेरियल कौन सा है. कॉपर की कॉइल्स लगाते हैं, लेते हैं हम लोग, कॉपर की कॉइल्स बोलते हैं ना भी, इस एसी में कॉपर की कॉइल्स है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हाँ कॉपर कॉइल वाला दो भैया. क्यों? कॉपर कॉइल्स, कॉपर की क्या प्रॉपर्टी है? हीट ट्रांसफर रेट अच्छी होती है उसकी, तो कंडेंसर की और इवेपोरेटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. क्लियर है? इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है जिस पे डिपेंड करेगा इसकी परफॉर्मेंस, वो करेगी वर्किंग मीडियम पे. मीडियम, वर्किंग मीडियम, ये जो ट्यूब्स हैं, ये इस पूरी साइकिल में अंदर जो चीज चल रही है ना, जो मीडियम चल रहा है, उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट. जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसमें जो वर्किंग मीडियम अंदर रिसर्कुलेट हो रहा है बार 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 बार, उस वर्किंग मीडियम को, सब्सटेंस को बोला जाता है रेफ्रिजरेंट. ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नियोन गैस, फ्रियोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोनोऑक्साइड गैस, these are the various examples of refrigerants that can be used. एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एटमॉस्फेरिक एयर आपका रेफ्रिजरेंट होता है.